तीन प्रोमिनेंट परेशानियां जो थी, जो गैप्स मैं कह रहा हूँ, नॉलेज गैप, एप्लीकेशन गैप और प्रेजेंटेशन गैप, ये अक्रॉस द टॉपर्स आपको दिखेगा कि लोगों में क्या अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स आ रहे हैं, और जिनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। वो जनरली इन तीन गैप्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। करंट का स्टैटिक के साथ कनेक्शन एक बहुत मेजर पिलर है जो आपके आंसर्स को एनरिच करता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल मार्जिन का गेम होता है। मैंने इससे एप्लीकेशन गैप, इट इज प्राइमरीली दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव नॉलेज, यू हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कंटेंट। प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द सेम इन आवर आंसर्स। हड़प्पा का बोला सर ने, वो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन GS2 में बोला हुआ था, किया आएगा प्रेसिडेंट का कंपैरिजन, और वो क्वेश्चन आया हुआ था। और ये क्वेश्चन इनके जो एक्स फैक्टर पॉइंटर्स थे, मैंने डायरेक्टली जाके वहां पे उतारे हैं, सोचना ही नहीं है। ये तो मतलब आप ब्राउनी पॉइंट ले रहे हो, आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे मिलेंगे। What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be civil study. You need to have that X factor in your answer. With the help of X factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed, and they were, I extracted a lot of content from them. Let's start our webinar. Today we have with us All India rank 339 Akash Rai, who got IPS in CSE 2024. So before 2024 he had given 4 attempts and he cleared all the 4 prelims, appeared for all the 4 mains, and had given 2 interviews prior to CSE 2024. Okay. So in 2024 he joined the Smash Means, and in his 5th attempt he secured All India rank 339 and got into the IPS service. Yeah. And in 2024 he was able to secure that particular rank specifically because of the 40-mark jump that he got into the GS papers. So across the 4 GS paper his score increased by 40, and this is basically because of his persistence, his hard work, and his willingness to learn and listen from others and incorporate the suggestions. Because after giving 4 mains, there is a certain level of the saturation, there is a certain level of the complacency that sets in, and to bring about those fundamental changes becomes very difficult, right? So despite that, he understood those things, he brought those changes, and with that in CSE 24 he got into the service, and I think he had the highest marks as far as the PSIR is concerned. So his PSIR score is also 286, right? And this year also, which is his last attempt, he's appearing for the interview. So apart from the congratulations, we also need to give him the best wishes for his interview, right? So as far as his journey is concerned, from what I can tell is during the course of those 3 months, I think we must have had at least 8 to 9 discussions of the papers. Those used to be mostly at night. So, and I think hardly 1 or 2 calls at max would be of less than 1 hour. Most of the calls were used to be beyond 1 hour, because that's the level of the depth that we used to go in our discussions, and that's the level of the doubts that he used to have. Okay, because for many of the doubts of his, I also had to take 1 or 2 minutes to think and then to give the answers. Okay, so because of that level of the depth, that level of the sincerity, and that level of the commitment, he was able to secure that particular rank. And then I won't take much of the time, but if you can learn few things from him, it's his humble nature, his willingness to work hard, because specifically in PSIR, from the answers that I have seen, I haven't seen any such answers from any of the toppers. The level of the vocabulary that he had developed, the level of the depth of the knowledge that he had. Even I have reviewed his notes as well. Okay.
So the level of the depth and the reading that he had done. Okay, I believe very few might have done that level of the research and consistently for last 5 years. So that's, I believe, is a very hard thing to do. And doing all that hard work by keeping smile on a face is particularly more difficult. So he has managed all those things. He had got the smaller reward last year. The bigger reward is still awaiting in the 25 results. So all the best, and I hope in the next 40-50 minutes, whatever the insights that he will be sharing with respect to the gaps in his preparation in the first 4 attempts, and how he made the changes or the structural shift in CSE 24, how Smash Means helped him, and what changes he made, and how he incorporated those changes into his answers, how he built his content. Everything he will be sharing. So I expect all of you to take the notes, because this level of the insights you won't find anywhere else. Yes, so I'm handing over the stage to Akash. I'll be moderating, and in between, once the session is over, then we will take the questions and answers. So Akash, you can start. Yes, sir. Thank you for this excellent introduction. अब स्टार्ट करते हैं, वैसे तो हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं Yes. इसमें. इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, सर. If you look at the marks, I'm always like in GS particularly, I have very subpar score. आप देखोगे 370 356, ये जनरली मतलब आपको बाहर निकालने के लिए ही ये नंबर होते हैं. इन नंबर से बाहर की जाओगे. तो ये दो ऐसे मतलब अटेम्प्ट दिए मैंने, जब दो इंटरव्यू दे के रखे थे मैंने, तब मुझे लगा कि कुछ तो मुझे अब नया करना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स वही बार बार रिवाइज करे जा रहा हूँ, उससे कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा है. तो फिर मैंने यही हमारे सिविल जैली में साकेत सर ने मुझे शुभम सर से इंट्रोड्यूस कराया था, और तब से मैंने स्मैश मेंस का तभी से पार्ट हूँ मैं. ये आई थिंक दिस इज 24 अटेम्प्ट में ही आया था मैं. और आई हैव सीन दिस जंप ऑफ 400 मार्क्स व्हिच इज इन द नेक्स्ट, व्हिच इज इन 24. और वो और पॉलिटिकल साइंस सर ने जैसा मेंशन करा, दोनों ने क्यूमुलेटिवली एक अच्छी सर्विस मुझे दिलाई है, which I'm very happy about. Still, I'm appearing for the same, appearing for an upgradation. But let's see how it goes. Coming to the Smash mains part, आप देखो क्या मेरे साथ गलत हो रहा था. मुझे पहले तो आप क्या होता है ना कि आप एक चीज कई, अब मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके थे ऑलरेडी, तो सेम चीज बार बार रिपीट करे जा रहे हो, एक पैटर्न आपके बिहेवियर में बन जाता है. आप बार बार वही चीज करते हो, बार बार एक ही तरीके से हथौड़ा मार रहे हो, तो वो टूटेगा नहीं. आपको कुछ नया करना पड़ेगा. अगर आपको वहां पे तलवार चलाना है और बार बार हथौड़ा मारोगे तो वो काम करेगा नहीं. आपको कुछ नया इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा. मुझे लगता है वो नया इंस्ट्रूमेंट स्मैश मेंस ने मेरे लिए आइडेंटिफाई करे कि ये आपकी परेशानियां हैं, और इन पे आप क्या क्या आपको काम कर रहे हैं. जैसे मैंने, मुझे समझ में आ रहा है कि 3 प्रोमिनेंट परेशानियां जो थी, जो गैप्स मैं कह रहा हूँ, नॉलेज गैप, एप्लीकेशन गैप और प्रेजेंटेशन गैप, ये अक्रॉस द टॉपर्स आपको दिखेगा कि लोगों में क्या अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स आ रहे हैं, और जिनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं. वो जनरली इन 3 गैप्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. फर्स्ट इज नॉलेज गैप. सर इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नॉलेज गैप का ये है कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखो. मैंने पिछले तो 5-6 तो मेंस ही मैंने ही लिखे, तो 6 साल के तो पेपर मैंने ही देखे हुए हैं वैसे, यूपीएससी भवन में जाके, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल्स में जाके देखे हैं मैंने, और उसके पहले भी मैंने कुछ एनालिसिस करी हुई है. और उससे एक पैटर्न आपको जो दिखना शुरू होता है कि कुछ माइक्रो थीम्स हैं. जैसे कि कास्ट पे क्वेश्चन सोसाइटी में जनरली आता ही आता है. ग्लोबलाइजेशन पे एक क्वेश्चन सोसाइटी के पेपर में आएगा विच इज GS1 का कंपोनेंट आएगा आपके पास एक प्रेसिडेंट का, या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम या एग्जीक्यूटिव जुडिशियल लेजिस्लेचर, इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके पेपर में. आप जब GS2 का पेपर लिखोगे, आप GS3 का पेपर लिखने जाओगे, आपको इंक्लूसिव ग्रुप का क्वेश्चन आना ही है. कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, वो आएगा ही आएगा. ऐसे कुछ माइक्रो थीम्स हैं, वो आपको देखने पड़ते हैं. लेकिन मुझे ये चीजें पता थी नहीं. मैं बस सिलेबस के थोड़े नोट्स बना लिए थे, और उसमें थोड़े बहुत कुछ एडिशन कहीं से कर ले, कहीं कोचिंग का कुछ नोट्स मिल गया, थोड़ा ऐड कर लिया. तो इस हिसाब से मैंने 4 अटेम्प्ट निकाले थे. और इसकी वजह से ये आप देख रहे हो कि आप लोग देख रहे होगे कि आंसर्स इतने रिफाइंड नहीं हो पा रहे थे.
आप अगर 8 पॉइंट लिख रहे हो और 8 पॉइंट में भी जबरदस्ती वहीं पे 7 मिनट में सोच के लिख रहे हो, तो वो आंसर बहुत ही पुअर क्वालिटी के निकलते हैं। और ये पेपर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव पेपर में परेशानी क्या होती है ना, कि सामने वाला कुछ थोड़ा एनरिच करके चला जाएगा, उसके पास पहले तो उस माइक्रो थीट में आंसर है, और आप और उसको अगर पता है कि इस पे क्वेश्चन तो आना ही आना है, और वो सारे कंटेंट अगर डंप करके आ गया, तो फिर ऑब्वियसली ही इज हैविंग एन एडवांटेज। तो ये एक गैप था जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। स्टैटिक करंट का डिस्कनेक्ट एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, हड़प्पा का एक क्वेश्चन था। हड़प्पा का 100 साल हो चुका था, अभी लास्ट ईयर 24 में 100 साल हुए थे डिस्कवरी के। और मैंने पढ़ा इसको भी था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सारे पढ़ते हैं, लेकिन मेंस वाले टाइम पे मैं इसको ऐड नहीं कर पा रहा था, अपने मेरे आंसरों में नहीं आते थे। और ये क्योंकि आप एक बार आप इंटरव्यू 2 बार 3 बार दे रहे हो, तो आपको ढेर जगह से आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, और टेस्ट सीरीज मैंने कई जगह से लिखने की तो कोशिश करी थी। होता क्या था उसमें, कि मैं कहीं पे भी उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चन सेम आ रहे हैं हर जगह, मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक परेशानी। ऐसे इन जनरल आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको इकोनॉमी में मिलेंगी, एनवायरमेंट में मिलेंगे। एनवायरमेंट तो पूरा करंट बेस्ड पेपर ही है। तो वो करंट का स्टैटिक के साथ कनेक्शन एक बहुत मेजर पिलर है, जो आपके आंसर्स को एनरिच करता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल मार्जिन का गेम होता है। ये एग्जाम बहुत स्मॉल मार्जिन पे लोग जीते हैं हारते हैं इसमें। तो उस डिस्कनेक्ट को ब्रिज करना भी एक मेजर इश्यू था, जिसको मैंने ग्रेजुअली साल भर 2 साल में सर के साथ काम करके इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी। उसके बाद कुछ डायमेंशन जेनरिक, जैसे आपको मैंने बोला कि आप वहीं अगर 7 मिनट में बैठ के आप पॉइंट सोचना शुरू करोगे, बहुत जेनरिक आंसर आपके निकलेंगे। आपके वो आंसर वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। और अगेन वो सब्जेक्टिव पेपर है, जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होगी आपकी, हमेशा एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर जाते जाएंगे। और क्यूमुलेटिवली 20 क्वेश्चन में ये 15-20 नंबर का गैप क्रिएट कर देता है। तो वो जेनरिक आंसर आपको बहुत आगे नहीं लेके जाएगा। आप वो 350 360 370 वाली रेंज में रहोगे, और वो एक अच्छा पोजीशन नहीं है। दूसरा चौथा एक जो परेशानी नॉलेज गैप के पार्ट में ही मैं देखूंगा अगर, तो वह सब्सटेंशिएशन गैप। और ये मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी थी, जो मुझे सर ने मुझे लग रहा डे 1 से लेके इस साल के मेंस तक मुझे पॉइंट आउट करा है। सब्सटेंशिएशन तुम बार बार कम रखते हो, सब्सटेंशिएशन की कई बार क्वालिटी खराब होती है। सब्सटेंशिएशन का मतलब क्या है, मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है पिछले 2 सालों में, सब्सटेंशिएशन क्या है। फैक्ट, डेटा, फिगर्स, एग्जाम्पल्स, जो भी आपके पास केस स्टडी है, वो सारी चीजें सब्सटेंशिएशन का पार्ट बनती है। वो लोग एग्जाम्पल की तरह लिखते हैं, वो लोग बॉक्स बना के आजकल लिख रहे हैं। पर सब्सटेंशिएशन हर पॉइंट के साथ, जितने पॉइंट्स के साथ हो सके उतना बढ़िया है। मेजोरिटी के साथ होना चाहिए सब्सटेंशिएशन। वही है, घर पे हमारे कहते हैं कि जितना आप पानी में चीनी डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। सब्सटेंशिएशन बेसिकली वो चीनी है, जितना डालोगे उतना मीठा होगा वो। इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट Right. स्लाइड्स। So I'll take just a minute. So यस सर। basic to just summarize. Right. So first was basically the knowledge gap. Knowledge gap as in with respect to the content that you are writing into that particular answer. So even though after giving the four means he understood the theme of the question, he had the content for all the topics. ठीक है, 4 मीन्स देने के बाद ऐसा इशू किसी को नहीं आता है कि 20 में से आप 12 या 13 या 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो। ठीक है, इफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इवन 2 मेंस इन योर थर्ड अटेम्प्ट, यू विल एंड अप अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 19 क्वेश्चंस, right? So that doesn't matter, that doesn't make any difference. And if you have this knowledge gap, so knowledge gap basically is in context of the basis of your preparation. So if you base your preparation on the syllabus that is given, or if you base your preparation on any of the notes rather than going by the logic of the PYQs or the micro theme, you will never able to cover the entire syllabus or never able to meet the demand of the UPSC. So जैसे there is one topic with respect to the developmental process. So in governance you have a topic named the developmental process. उसके notes आपको कहीं नहीं मिलेंगे. Basically in that particular topic what they ask, they will either ask you with respect to the civil society organization, or they will ask you with respect to the issues in government schemes. But until and unless you identify that micro theme or the demand of the question is same in every year, ठीक है, वही कंटेंट वही एग्जांपल्स आपको जाके लिखना है। until and unless you identify that particular micro theme, you won't be able to write that particular answer with proper depth. Second, कि everyone reads current affairs, ठीक है, that's not a rocket science कि you have to cover the current affairs, but reading the current affairs from exam oriented perspective is what makes the difference. जैसे आकाश ने जो एग्जांपल दिया कि हड़प्पा completed 100th year of the
discovery in 2024. So we were expecting a question on that. Each and every one of you might have read about it, but nobody had given a thought where you have to use that particular information into your answer, right? Either you can start your answer with this very context ki Harappan civilization, which is considered as the first urban civilization, was in India, what completed the 100th year of its discovery. So it was discovered in 1924 by John Marshall. So that you can think, okay, I can use this as the introduction. Or you can simply make a box and you can put it as the fact file or the X factor. So in that, you can give those two facts. 2024 completed the 100th year of Harappa discovery. Second, Dholavira was added to the UNESCO in 2021. So these two facts, you can put it into the box. It will enhance your presentation. It will enhance the visibility of your X factor pointers. Right. So even though you are reading the current affairs, you don't know where you have to use that into the answer. So that's the second difference or the gap with respect to the knowledge. Third, where you don't have the proper dimension coverage or where you don't have the proper frameworks. So उसकी वजह से क्या होता है कि the answers that you are writing, the dimensions that you are providing are very generic. For example, if they ask you what are the major issues with respect to the implementation of any particular government scheme, you will simply write a point on lack of public awareness. Okay, though that particular point is correct, nobody would argue with respect to the factual correctness of it, but the value of that particular point is very less until and unless you substantiate it either by the example or any of the recent event. Okay, so lack of public awareness, digital divide, or the patriarchy, or the burden on the women, etc. If you write those kind of the points, nobody is questioning them in terms of the factual correctness. But the value is very less because you are not substantiating them with the data or examples. So you end up writing the generic points, which doesn't fetch you more marks. So that's the one of the major gap that the veterans have or even the beginners have. Right? Next is Yes, sir. So next we have application gap. When I say application gap, it is primarily that you know a lot of things. You have knowledge, you have collected a lot of content. Problem is we are not able to apply the same in our answers. And because of that, we are not able to fetch marks. फिर हम सोचते रहते हैं कि यार मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, चीजें तो जो टॉपर के आंसर देख रहे हैं कि इसके आंसर में भी तो वही चीजें लिखी हैं जो मुझे पता है सारी, लेकिन आपके आंसर में वो चीजें निकल नहीं रही हैं और सही जगह पे निकल नहीं रही हैं। ये परेशानी हो रही है। तो इसका जिसमें जो मेजर कंपोनेंट्स मुझे दिखे, पहला कि फ्रेमवर्क का क्या, फ्रेमवर्क गैप क्या है। अब एक तो जो रेगुलर परेशानी मैं आपको कंटिन्यूअस बता रहा हूँ इज दैट you generally in general what people do is that they start thinking in the moment when they're writing that 7 minute answer in examination hall. At that point of time they'll start thinking कि हमारे ये 8 पॉइंट 7 पॉइंट लिखेंगे। इससे होता क्या है, क्वालिटी नीचे चली गई, आप ज्यादा पॉइंट नहीं सोच पाए। Frameworks आपके लिए क्या करते हैं, आप नंबर इंक्रीज, तो आपने नाम सुना होगा पेस्टल का, स्टेपल का, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अगर आप फ्रेमवर्क्स, और आपको बहुत सारे बताए भी जाएंगे स्मैश मीन्स में, तो जब आपके फ्रेमवर्क्स तैयार होते हैं, आप जनरली 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखते हो, जनरली आप स्टैंडर्ड पॉइंट्स को पहले कवर करते हो, और उनके फिर आप ऑब्वियसली वही सब्जेक्टिव पेपर, अगेन दिस एग्जामिनेशन सब्जेक्ट पेपर, एंड यू आर एबल टू फेच दैट 1 एक्स्ट्रा मार्क, 1.5 एक्स्ट्रा मार्क, और वही क्यूमुलेटिवली आगे जाके 15 मार्क्स में दिखता है। तो जो 100 नंबर किसी के आए और किसी के 120 नंबर आए जीएस2 में, वो डिफरेंस मेजर इसी की वजह से आ रहा है। यही क्यूमुलेटिव एक नंबर करके वो एंड में 120 नंबर आपको दिखता है। तो ये एक फ्रेमवर्क के होने का बेनिफिट होता है, जो मैं पहले बिल्कुल ही नहीं करता। मैं सीधे जाके एग्जाम में ही सोचता था, वहीं पे लिखता था, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम होते थे, क्वालिटी खराब होती थी, फिर मार्क्स आएंगे नहीं कभी। देन इज नोइंग एंड परफॉर्मिंग गैप। अगेन इसमें क्या हो रहा है कि आपको पता है लेकिन आप आंसर लिखोगे नहीं कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो आप परफॉर्म करोगे कैसे, वो परफॉर्मेंस आएगा नहीं उस पे, क्योंकि आपको अगेन, और इसको मैंने मसल मेमोरी से भी कनेक्ट करके रखा हुआ है कि आप जितना लिखोगे उतना ज्यादा आप चीजें आपके नोट्स में जो है आप उनको कनेक्ट कर पाओगे और उनको आप आंसर में ला पाओगे। आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप होगी। आप देखोगे हड़प्पा, आपको पता है कि ये 7-8 पॉइंटर तो मैं निकाल ही दूंगा, ये 7-8 वहां निकाल दिए मैंने बैठ के, और उसके बाद 2-3 जो है वहां सोच के लिख दिए मैंने, कॉन्टेक्स्ट जो भी है, कॉन्टेक्चुअल आंसर्स तो हमेशा होने चाहिए।
तो ये 7-8 पॉइंटर आपने जो भी अपने हड़प्पा के तैयार रखे हैं वो आपने डाले, और उसके बाद अपने 1-2 पॉइंट जो भी वहां पे समझ में आए, 2-3 पॉइंट, 11-12 तक आपको पहुंचना है। मतलब वो बेस्ट केस सिनारियो होता है, आप 11-12 पॉइंट एक 10 मार्कर में लिख रहे हैं, 18-19 पॉइंट अगर पहुंच रहे हैं आप 15 मार्कर में, तो आप बहुत ही सेफ साइड पे हैं। आपका इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा। देन स्ट्रक्चरिंग गैप। स्ट्रक्चरिंग गैप क्या है? होता क्या है, हम जनरली जो इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से हैं, हम थोड़ा वो मैकेनिकल टर्म्स में समझते हैं चीजों को, कि क्वेश्चन दिया है तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर है। ये मतलब सीधे सीधे तरीके से हम क्वेश्चनों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटीज में और ये ह्यूमैनिटीज का पेपर है, तो ह्यूमैनिटीज में क्या होता है कि कभी आपके कीवर्ड जो एंड में लिखे हुए हैं, जैसे डिस्कस, और डिस्कस हो गया, एनालाइज हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, उनके बेसिस पे क्या आपको आंसर डिसाइड करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा। क्रिटिकली एनालाइज है तो आप प्रोज और कॉन्स दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन देते हो। कॉन्स को सिग्निफिकेंटली ज्यादा प्रोपोर्शन मिलता है इन जनरल, अगर डिस्कस पॉइंट होता है तो डिस्कस कीवर्ड है उसके कंपैरिजन में। ये कीवर्ड को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। और ये सारी चीजें अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे करो, जो कि आपको टेस्टेस वगैरह आप लिखोगे, तो बहुत सारे बार आपको लिखते लिखते टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट होता है। मसल मेमोरी डेवलप हमेशा होगा, अगेन आप पॉइंटर्स बहुत सारे निकालोगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये एप्लीकेशन गैप इस तरीके से मुझे लगता है कि एक मेजर इशू मेरे लिए था 21 और 23 में मुझे, जिसने परेशान करा। और 24 में मैं रिलेटिवली कंफर्टेबल था, 25 में क्योंकि मैं अगेन पार्ट था स्मैश मेंस का, तो मुझे रिलेटिवली ज्यादा कंफर्ट इस बार फिर से लगा है। Perfect. So basically, just to give the summary of it, the application gap is basically key for those who don't have the knowledge gap. Okay, so specifically with respect to the Akash, I can say last year also I had seen his content was already there. He was working hard for his all the previous attempts. Okay, he had the notes, he had the content, he had the answer writing practice also. But what he lacked specifically was he didn't get the proper, I believe, correct me if I'm wrong, the proper feedback on those answers, because of which the mistakes were recurring. Right. So basically, despite having the knowledge, if your application fails, okay, because ultimately your mains mark are not going to be given on the basis of the notes that you have, or the knowledge that you present, or knowledge that you possess. Your mains marks are going to come from the answers that you have written. So that is why the one core philosophy that toppers always mention is that keep your resources or resources maximum revisions or minimum. Logic behind it is that even though if you have the knowledge, it is the level of the consolidation of that knowledge. How many revisions you have of that knowledge, how many times you have tried to apply that knowledge into your answers through answer writing practice, that is what improves your application. Right. So for example, even if you have written about all the issues in agriculture or all the issues with respect to the functioning of the parliament, if you haven't classified them under the specific framework, let's say PIES framework, so while doing the issues in the parliament, if you haven't classified them under PIES, so political issues, institutional issues, economic issues, social issues. Okay, so this classification, if you have done that classification, it will be easy for you to memorize, and it will be easy for you to write those points into the actual answer also. That will bring the diversity of your points. You are writing political, institutional, economic, social. Secondly, it will reduce your brainstorming point. Generates, right? And this application part is basically reflected as in how much of the answer writing that you are doing, how much of the smart work that you are doing, and how much of the structuring gap that you are feeling. So structuring gap as in where based upon the demands of the questions, be it implicit demand, explicit demand, or be it the understanding of the directives given in the question. So based upon that, how you are managing the space, how much justice you are giving to the each demand of the questions. Right. So these are all the small things which makes a very large impact. Just remember, even if you lag behind by 0.5 mark in every answer, that's make the difference of 40 marks. Because across the 4 papers, you will be writing 79 answers. So 0.5 in each
answer is the difference of 40 marks. So even the smallest of the things, those makes a lot of difference. And the major issue एप्लीकेशन गैप में ये आता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनके ये इश्यूज है. जैसे फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू द आकाश आल्सो, ही हैड रिटन ऑल द आंसर्स. नॉलेज गैप काफी हद तक कम था, बट वन थिंग दैट वी मेजरली डिड वाज अरेंजिंग द पॉइंट्स. क्या स्टिल रिमेंबर कि कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते थे कि जहां पे उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते थे वो एंड में आते थे, एंड जो पेरिफेरल पॉइंट्स रहते थे वो एट द बिगिनिंग आते थे. सो इट इज नॉट बिकॉज आपके पास वहां पे टाइम नहीं होता. यू हैव टू ब्रेन, यू गेट ओनली 30 to 40 सेकंड्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. उसमें आपको सारा कंटेंट प्रोसेस करके आंसर लिखना होता है. तो उसमें टू इंश्योर दैट ऑल द की पॉइंट्स आर कमिंग एट द बिगिनिंग एंड थोड़े से जो पेरिफेरल है वो एंड एंड में आ जाए, तो दैट सीक्वेंसिंग और प्रायोरिटाइजिंग द पॉइंट्स आल्सो मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस. तो ये भी इशू हमने आइडेंटिफाई किया था. इस पे भी वी ट्राई टू वर्क अ लॉट, राइट. और ऐसा नहीं है कि आकाश के मार्क्स की कुछ कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा था और हमने कि बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाया, नहीं. बेसिकली वी वर्कड अपॉन these smaller aspects only. So the 40 marks जो बढ़े हैं, that means on an average per question 0.5 ही बढ़े हैं. मीन्स 99% उनका ऑलरेडी था और 90% आप कह सकते हो. With these minor changes we tried to improve that 10%. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? सो दैट लेवल ऑफ द scientific detailing or scientific understanding or analysis is required as far as the answer writing is concerned. Even the sequencing of the points. स्पेसिफिकली हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जब भी डिस्कस करते थे, आई यूज्ड टू टेल कि स्ट्रक्चरल इश्यूज पहले लिखो. उस पर्टिकुलर माइक्रो थीम के जो भी फंडामेंटल इश्यूज है वो आपके पहले आने चाहिए, खास करके एग्रीकल्चर के. लैंड फ्रेगमेंटेशन हैज टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ योर आंसर, राइट, बिकॉज दैट इज द स्ट्रक्चरल. वो इशू सॉल्व हो गया, आपके आधे इश्यूज पर्टिकुलर माइक्रो थीम के कवर हो जाएंगे, राइट. सो द पॉइंट इज एप्लीकेशन गैप इंश्योर्स दैट whatever knowledge you have is, or when you bridge the application gap, it ensures that whatever knowledge you have is properly getting reflected into your answers. Okay. And the last thing that we worked majorly was this. So Akash will explain it in a better way. थर्ड आपको बताया मैंने, जो मैंने तीन चीजें मुझे लगा कि मेजर इश्यू आ रही थी मेरे अंदर. थर्ड वाज प्रेजेंटेशन गैप. और प्रेजेंटेशन का जो मुझे समझ में आया कि जनरली हम, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा है, तो हमें लगता है कि बस बेयर मिनिमम काम कर देंगे, 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट लिख देंगे और आंसर लिख के छोड़ देंगे. वी हैव डन आवर जॉब. इट इज एग्जामिनर्स जॉब टू गिव अस मार्क्स. ही विल रीड एवरीथिंग, बट यू अंडरस्टैंड, he is a DU professor, he is a JNU professor who is going to check the paper. Already he is recently frustrated. He has to check 20-25 papers. He is getting, I think, 300 or 400 rupees for checking that paper. अब आप एक्सपेक्ट अगर करो उनको कि मैं कॉपी ले जाकर रख दूंगा, ऐसे रायता बना के रख दिया और वो बस पढ़ लेंगे, इट विल जस्ट नॉट हैपन कि ही विल गिव यू बेटर मार्क्स. इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा. अब प्रेजेंटेशन कैसे जाएगा? प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है? एक तो कि स्ट्रक्चरिंग वाले पार्ट का एक प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरिंग में दिखता है. प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरिंग में कैसे दिखता है? क्वेश्चन है, आप उसके कीवर्ड के हिसाब से तोड़ना शुरू करेगा, तो आपको दिखेगा कि 2 या 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बनेंगे और वो विजिबल होने चाहिए. तो वहां से एक प्रेजेंटेशन का आता है. दूसरा, विजुअल चार्ट्स मुझे लगता है कि इंटीग्रेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. विजुअल चार्ट्स अब कैसे बनेंगे? विजुअल चार्ट्स हमारे कुछ हैं कि एक फ्लो चार्ट बना दिया आपने. जैसे कोई प्रोसेस आप दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वहां के कोई प्रोसेस आप कुछ दिखा रहे हो. या फिर मान लो सिल्क रियरिंग कैसे होती है, उसका एक प्रोसेस दिखा रहे हो. विजुअल चार्ट इज ऑलवेज बेटर देन जस्ट राइटिंग इट इन वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स में पढ़ना मुश्किल है. विजुअली चीजें बहुत जल्दी हो जाती है और एग्जामिनर का काम आप जितना आसान करोगे उतने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वो हर एक नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है. मैं आपको अपने 6 एक्सपीरियंस, 6 के 6 महीने लिखे और मैं आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने पिछले साल 3 नंबर से आईएएस, मतलब एक सर्विस, मैं पुलिस में रहा था और एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं गया था. हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रेजेंटेशन इंश्योर करता है कि आपके नंबर कहाँ से बढ़ेंगे. तो विजुअल कंटेंट हमारे चलेंगे.
दूसरे मैप बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, मैप पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में बहुत सारे मैप्स आते हैं, इंडिया के मैप बनेंगे, वर्ल्ड के मैप बनेंगे, आजकल एनवायरमेंट में भी मैप आने लग गए हैं, इकोनॉमी में मैप आने लग गए हैं, साइंस टेक में मैप आने लगे हैं, पर्टिकुलर जब हम रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह की बात कर रहे हैं उस टाइम पे मैप का इंपॉर्टेंट एक रोल आ जाता है। ग्राफ और पाई चार्ट, आपको पाई चार्ट पर्टिकुलर में बोलो तो आप जहां पे भी आपको सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होता है, जैसे आप एग्रीकल्चर को देखो, एग्रीकल्चर में एक बहुत स्टैंडर्ड डायग्राम है जो जनरली लोग यूज कर रहे हैं कि राइस का शेयर कितना है हमारे मिलियन टन में जो पार्ट करते हैं कि 25% राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, 25% वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, 10% पल्सेस है, 10% ऑयल सीड है। ये चीजें, ये एक जो चार्ट है बहुत स्टैंडर्ड चार्ट है, लेकिन लोग इसको भी नहीं यूज करते हैं। ये जनरली मैं तो अपने 5वें अटेम्प्ट में आके यूज करना शुरू किया था, लेकिन टॉपर्स के कॉपी में आप देखोगे रेगुलरली वो चीज यूज किया जा रहा है। तो आपको पाई चार्ट वगैरह इंटीग्रेट करना, बार ग्राफ्स आप इंटीग्रेट करना, मैंने बार ग्राफ इस बार इंटीग्रेट किया था, मुझे याद आ रहा है एक वो क्वेश्चन था नक्सलिज्म का, और उस पर मैंने इस बार बार ग्राफ भी यूज किया है। लास्ट ईयर मैंने कई सारे बार ग्राफ यूज किए थे। पर्टिकुलरली आप अगर बजट से निकालोगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बार ग्राफ बहुत सारा बना होता है बजट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, अब वो बहुत हैंडी डायग्राम से वो आपके अगर 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के आए हैं, इकोनॉमी मतलब कोर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, 4 क्वेश्चन अगर इकोनॉमी के आए हैं तो आप में आपके 2 या 3 जगहों पे तो वो डायग्राम लग ही जाएंगे, वो ऐसे वाले बार ग्राफ्स हैं, तो उनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। देन बनानी है तो अभी कंपल्सन की तरह आपने जाके कुछ भी डायग्राम बना दिए, पता ही नहीं लग रहा किधर जम्मू है किधर कश्मीर है, थोड़ा तो आइडिया लगे कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट आप दिखा रहे हो, तो इतना तो विजुअल क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। आप अगर जल्दी जल्दी बनाओगे तो फिर वही उसी हिसाब से नंबर भी एग्जामिनर देगा सामने से आपको, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। और विजुअल टूल किट, मैं इससे बस यही समझाना चाह रहा था विजुअल टूल किट से कि आप जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांगली किया था, मैं एनसीईआरटी के जितने मेजर डायग्राम्स निकल सकते हैं मैंने सारे निकाले हुए थे, एक जगह कलेक्ट करके पेन से बना बना के मैंने रखा हुआ था। जीसी ल्योंग से इतने डायग्राम्स निकल सकते थे मैंने वहां निकाला था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आर्टिफिशियल बैंक और लीव्स का एक डायग्राम था वो मैंने निकाल के रखा हुआ था, और मैं एक्चुअल एग्जाम में तो नहीं यूज कर पाया था कि टेस्ट पेपर में मैंने बहुत सारे उसको यूज किए थे। तो इस तरीके के आपके पास डायग्राम का एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। आप डिजिटली बनाते हो आप डिजिटली बनाओ, इफ यू आर मेकिंग इट ऑन पेन एंड पेपर यू मेक इट ऑन पेन एंड पेपर, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू डू दिस इज अ बेयर मिनिमम। तो ये प्रेजेंटेशन गैप मुझे समझ में आता है, प्रेजेंटेशन गैप के इश्यूज जो है जो मुझे अब तक परेशान कर रहे थे, और उसकी वजह से आप अगर देखो तो ये एक जैसे आंसर है प्रेजेंटेशन में आपको कह रहा था 2-3 लेवल पे ना, आप देखो आंसर इस क्वेश्चन को आप अगर पढ़ो, डू यू थिंक मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन शुड बी डिटरमाइंड बाय आउटकम्स और बाय इट्स इंट्रिंसिक नेचर। अब ये क्वेश्चन के 2-3 बहुत क्लियर जो भी कंपोनेंट बनेंगे वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। आप सेकंड कंपोनेंट को देखो, सेकंड पार्ट जो इसका आंसर का है, पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ करी ही नहीं है मैंने। और अगर मैं नहीं करूंगा तो एग्जाम में फिर उसी तरह से लिटरली लोअर मार्क्स मिलेंगे मुझे। तो एक तो ये वाला प्रेजेंटेशन की बात आई, दूसरी प्रेजेंटेशन डायग्राम वाले कंपोनेंट की बात करी मैंने। डायग्राम का पता ही नहीं लग रहा है कि डायग्राम बने ही नहीं है कहीं। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे नहीं तो आपको 4 देगा, और सामने अगर बनाएगा डायग्राम तो उसको ऑब्वियसली 5 नंबर देगा। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, उसके मेरे आए थे आई थिंक जीएस 4 में 110 या 113 नंबर, उसके आए थे 120 नंबर। मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखता हूँ, मैं मेरे आंसर्स में ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह मैं भरता हूँ, जीएस 4 की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे नंबर उससे कम रहे। और मैंने उसको पूछा क्यों रहे कम, उसके 120 नंबर थे। वो कहता है यार मैं तो 7-8 पॉइंट ही लिखता हूँ जीएस 4 में। तो मैंने फिर बोला कि मेरे मेरे अंदर क्या परेशानी है, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। उसने बोला कि हर एक आंसर में जहां भी वो पॉसिबल है, और एटलीस्ट स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन जो इसके होते हैं थियोरेटिकल वाले, हर एक में डायग्राम बनाया था उसने। ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं एक नंबर मिलता जा रहा है। मैं कहीं कितना भी ज्यादा कंटेंट लिख लूं, मैं एक जगह मैनेज करता हूँ, अगली जगह उसको डायग्राम के नंबर मिल जाते हैं। और डायग्राम बनाना बहुत आसान है, आप अगर देखोगे बनाना शुरू करोगे इंटीग्रेट करना शुरू करोगे, पॉइंट लिखने से ज्यादा आसान है डायग्राम बनाना। आप इस चीज को नोटिस करोगे, जब अगर आप कुछ अगर वेटरन होंगे बैठे होंगे लोग तो ये चीज को शायद थोड़ा और रिलेट कर पाएंगे। पर अगर जो पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, फॉर देम ऑल्सो इट इज like you will realize once you start integrating diagrams in your answer कि डायग्राम मेकिंग वो थोड़ा सा स्पेस भी कवर कर लेता है। यू आर एबल टू गिव अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स विच एज सच यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू यूज, जो डायरेक्टली क्वेश्चन के डिमांड को ही एड्रेस नहीं कर रहे हो तो साइड में थोड़ा सा कंटेंट एक्स्ट्रा आप यूज कर सकते हो। लाइक आई रिमेंबर इस बार हड़प्पा का क्वेश्चन था, हड़प्पा के क्वेश्चन है मेरे पास फैक्ट फाइल एक मैंने बना के रखा हुआ था,
फैक्ट फाइल मैंने क्वेश्चन के आंसर कर दिया, पर डायरेक्टली वो फैक्ट फाइल यूज नहीं हो रहा था। साइड मैंने बॉक्स बनाया, ऐसे फैक्ट फाइल करके लिखा मैंने, और वो सारे पॉइंटर्स डाल दिए मैंने। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लोग जितने पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट तो मैं लिख ही रहा हूँ, एग्जाम्पल्स मैं कर रहा हूँ, सब्सटेंशिएशन दे रहा हूँ। साथ में मैंने एक और क्या डाल दिया कि एक्स्ट्रा फैक्ट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्लोज है, वो सारी चीजें मैंने डाल दी वहां पे। तो अब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऑब्वियसली एग्जामिनर विल फील कि भाई इसको तो थोड़े नंबर, मतलब 1 नंबर या 0.5 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं इसको। तो ये आप इशू आप इन जनरल देखोगे लोगों में, जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे चुके, मेंस लिख के जा रहे हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। प्रेजेंटेशन का गैप आएगा, उनके कंटेंट का गैप जाता है। और ये परेशानियां मुझे लगता है मैंने पिछले 2 सालों में कवर करने की कोशिश करी है, जितना कर पाया हूँ। क्योंकि हमेशा ये तो एक इम्प्रूवमेंट का कोई एंड नहीं है, पर जितना मैं कर पाया हूँ मैंने करने की कोशिश करी है। Right. This was the first answer of the first test of the Smash P, like Smash Mains 2024. So ये आकाश का पहला पेपर था। इसमें अगर आप देखोगे तो कंटेंट वाइज इट्स वेरी डिसेंट आंसर, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज नॉलेज डेप्थ, इट रिफ्लेक्ट्स हिज हार्ड वर्क, और इट रिफ्लेक्ट्स हिज ओवरऑल प्रिपरेशन लेवल। बट स्ट्रक्चर वाइज इफ यू सी, it's not very easy to identify where the first part of the question is ending, where the second is starting. Secondly, with respect to the dimension coverage also, if you see, there are total 9 points. Thirdly, जैसे इन्होंने भी कहा कि with respect to the diagrams, right? After this, after working on those issues, how his answer writing improved, that we'll see, or that he will explain through the next slides, right? So how he broke this particular cycle to improve the marks by 40. आई जस्ट मेक वन एडिशन हियर। वो आपने पेपर जो देखा उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि आप देखो नीचे का स्पेस यहाँ पे रखा हुआ है बड़ा था। विजिबल fulfilling of the paper also is very important in scoring decently. पेपर Sure. अब मैंने क्या करा है, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट साइज में लिख दिया, बहुत क्लोज क्लोज गैपिंग नहीं रखी है। इसकी वजह से नीचे के पार्ट को मैंने वो खाली रह गया है। तो विजिबली फुल लिखना पेपर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बस दिस इज द एडिशन आई हैड टू डू। वो ये 3 गैप्स थे, अब कैसे मैंने इनको ब्रिज करा। अगेन, रेडी मेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अब वी हैव रीच्ड टू अ सैचुरेशन लेवल इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड, they generally are having, for the micro themes, they are having introductions, they are having prepared conclusions also. तो आप उस रेस में पीछे ना रह जाओ। For that it is very important that you identify the 2-3 introductions for every micro theme, 2-3 conclusions for every micro theme। वो आपके पॉइंटर्स भी बन सकते हैं आगे जाके, वो आपके लिए कहीं भी ऐसे में कहीं भी यूज कर सकते हो, वो कई जगह यूज होते हैं। बट फॉर माइक्रो थीम्स यू हैव टू हैव introductions and conclusions that will be helping you in a good stead. देन एक्स फैक्टर नोट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे नोट्स तो थे मेरे पास, मैंने अपने खुद के नोट्स 4 अटेम्प्ट में बनाए ही थे। लेकिन एक्स फैक्टर नोट्स जैसे, अब मैं कुछ स्पेसिफिक्स बताऊं, मैंने पॉलिटी के ढेर सारे एक्स फैक्टर नोट से जजमेंट वगैरह कलेक्ट किए थे। मुझे याद है इकोनॉमी के पूरे एक्स फैक्टर नोट से प्रिंट आउट करा लिए थे मैंने, क्योंकि इकोनॉमी के नोट्स में मेरे क्वालिटी नहीं आ रही थी, पॉइंट मुझे सोचने में बहुत टाइम लगता था, और वो फ्रेमवर्क वाला डायमेंशन हमेशा मिसिंग रहता था। मैंने यहाँ देखा कि अपने फ्रेमवर्क बने हुए ऑलरेडी मिल रहे हैं मुझे, पॉइंटर्स 2-3 बार रिवाइज कर लूंगा तो जितने पुराने जो भी मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े उससे चीजें रिलेट तो कर ही पाता था मैं हमेशा। लेकिन ये है कि एक जगह कंपाइल्ड चीजें हैं मेरे पास, तो इनको रिवाइज करना मेरे लिए आसान होगा। और मेंस में रिवीजन इज वे मोर इंपॉर्टेंट। एक जगह एक नोट्स, आपके कम नोट्स लेकिन उसका मल्टीपल रिवीजन इज वे मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेंस में अगर आपने किसी चीज को 10 बार 15 बार नहीं पढ़ा है, वो आपको नहीं याद आएगा, आप गारंटी ले लो। और अगर आपने कोशिश करी कुछ ऐसी चीज को याद करने की जो आपको उसमें इमिडिएटली क्लिक नहीं कर रहा है, रेस्ट अश्योर्ड आप क्वेश्चन छोड़ोगे या फिर बाकी के आंसर जो एंड में होंगे उनकी क्वालिटी बहुत गंदी कर दोगे। क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत मेजर इशू होता है मेंस में। मैं इस बार ही बताऊं, पहले GS1 के पेपर में मैंने आखिरी के 3 क्वेश्चन थोड़े, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 खराब कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने पिकअप करना शुरू किया, लेकिन वो 3 क्वेश्चन खराब कर दिए थे मैंने। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी मेजर इशू, और ये मैं तब बता रहा हूँ आपको जब छठा मेंस लिख रहा हूँ मैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी 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 क्रूशियल थिंग विच यू हैव टू लुक आफ्टर। मॉडल आंसर्स, आप जब टेस्ट लिखना शुरू करोगे मेंस का, स्मैश मेंस का, तो उसमें मॉडल आंसर्स जो आते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है आप देखो। एक, आपने जो क्वेश्चन लिखा आप उसको एक कंपेयर कर पाते हो। दूसरा, आप वहां से बहुत सारे एक्स फैक्टर पॉइंटर्स निकाल सकते हो वहां पे, स्टैंडर्ड। और अगेन मैं हड़प्पा वाला एग्जांपल ले दूंगा। हड़प्पा का एग्जांपल था यहाँ पे, ये जो 2 पॉइंट लिखे हुए थे, दोनों जाके मैंने ऐसे दोनों उसमें लिख के आया हूं मैं आंसर में।
मुझे क्लियरली याद था कि मुझे लग ही रहा था ये हड़प्पा आएगा आएगा। सर ने मुझे कई बार बोला था हड़प्पा आएगा। हड़प्पा का बोला सर ने, वो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन GS2 में बोला हुआ था कि आएगा प्रेसिडेंट का कंपैरिजन, और वो क्वेश्चन आया हुआ था। और ये क्वेश्चन इनके जो एक्सपर्ट एक्सपेक्टर पॉइंटर्स थे मैंने डायरेक्टली जाके वहां पे उतारे हैं, सोचना ही नहीं है। ये तो मतलब आप ब्राउनी पॉइंट ले रहे हो, आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे मिलेंगे इसके। तो ये एक बेनिफिशियल रहा था। इफ यू कैन गो बैक अगेन सर। तो एक्स फैक्टर का ये बेनिफिट रहा। आप एंड में रिवीजन के लिए एक्स फैक्टर को, पर्टिकुलरली जो पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में लोग हैं उनके नोट्स जनरली तैयार होने थोड़े मुश्किल होते हैं, वो उतने रिफाइंड नोट्स उनके नहीं होते हैं। उस केस में एक्स फैक्टर नोट जो है, क्योंकि वो माइक्रो थीम्स बहुत सारे कवर कर रहा है, मेजोरिटी माइक्रो थीम्स कवर होते ही हैं जो रेलेवेंट हैं और जो स्टैंडर्ड माइक्रो थीम्स हैं। अब अगर इकोनॉमी का पेपर है तो उसमें आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का माइक्रो थीम कवर होना ही होना है। तो वो एक बार को आपने गो थ्रू कर लिया, आपको डेटा मिल गया, आपको पॉइंट्स कौन से लिखने हैं वो मिल गए, तो यू विल ऑलवेज बी ऑन रिलेटिवली एडवांटेजियस पोजीशन। PYQ मॉडल आंसर्स, और मैंने पर्टिकुलरली यूज किया था एथिक्स वाला। एथिक्स के आंसर्स थे उसमें, और वो बढ़िया सेग्रीगेट करके रखा हुआ था, तो मैंने उनको यूज करा था और वो मुझे बढ़िया बेनिफिशियल लगा था मॉडल आंसर। तो यू कैन यूज दैट अगेन ऑल्सो। दिस अगेन आई थिंक दिस इज ये नोट्स वाला पार्ट है ना ये तो। Yes, this is X Factor notes की where it is basically the benefits of e-governance. तो इसमें अगर आप देखोगे तो we have given a proper stakeholder based classification. So benefits for government, for citizens, for administration, for business on that lines, right? यस सर। तो ये जो हाँ। framework application होता है तो that और yes. यस यस, मैं ये कह रहा हूँ बस कि जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ या फिर ई गवर्नेंस हुआ, ये स्टैंडर्ड टॉपिक है जिनसे यू विल ऑलवेज बी गेटिंग क्वेश्चन। और इनके पॉइंट्स जो फिक्स होते हैं, सर ने भी मेंशन करा था सेम चीज, इनके पॉइंट्स फिक्स होते हैं, आपको जाके बस डाल देना है वहां पे। एग्जाम्पल सेम रहेंगे, सब्सटेंशिएशन सेम रहेगा, डायग्राम्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। आपको बस जाके ये क्लासिफाइड तरीके से कि ई गवर्नेंस है, 4 क्लियर स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन। सारों के लिए आप इनके 3-3 पॉइंट लिख दो, आपके बढ़िया 12 पॉइंट हो गए 10 मार्कर में। 4-5 पॉइंट अगर आप लिखना शुरू करो तो आपके 18-19-20 पॉइंट पहुंच जाएंगे 15 मार्कर में। स्टैंडर्ड पॉइंट से कुछ ज्यादा इन टॉपिक्स में सोचना नहीं होता, सीधा लिख के आना होता है इनमें। तो ये तो वही है। आपको एक्स फैक्टर पॉइंटर्स की बात बता रहा था मैंने, एक तो आपको हड़प्पा वाला बताया। ये एक्स फैक्टर लेफ्ट विंग का क्वेश्चन आया था, और लेफ्ट विंग में इसका मैंने आपको बोला ना वो बार चार्ट का, ये बार चार्ट बना के आया था मैं, कि ऐसे लिखा था 2014 में 126 और 2024 में 36-38। और हमने जब डिस्कस कर रहे थे सर, मुझे जब मेंस लिखा जाता शायद उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, तो उसमें एक एडिशन कर दिया था मैंने 18 डिस्ट्रिक्ट का। 3 लाइन बना के आया था, मुझे याद आ रहा है। और हमने उस एंड पे डिस्कस भी किया था इस चीज को कि 18 के करीब पहुंच गया है अभी। No, और it होम मिनिस्टर was वाज वेरी मच। 6 हाँ, districts. 6 पहुंच गया था, सॉरी हाँ। तो 6 पहुंच ऑपरेशन गए थे। ब्लैक फॉरेस्ट के बाद वाला डेटा है ना ये? हाँ, वो बिल्कुल एंड में आते आते जब हमारा आखिरी का आंसर हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे ये हमने बात की थी। राइट. तो ये दीज थिंग्स यू कैन ऑलवेज, और ये इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस जो हैं, these data, terrorism in Jammu and Kashmir, left-wing extremism, number of cyber crimes. In general, the standard practice these days is that you are using bar graph to represent these things, right? And to represent these data. Short चीज short में दिख भी जाता है, visible clarity आती है, एक वो additional factor आता है कि बढ़िया presentation रखा है, and you'll be getting 1 marks extra, and that 1 marks extra marks is very very important. Then application gap again is something which I'd say, मतलब नोट्स तो बहुत बना दिए मैंने पर नहीं प्रेजेंट कर पाना अगेन वाज अ मेजर इशू फॉर मी। और वो एप्लीकेशन गैप जो है वो मैंने स्मैश में आके जितना इंप्रूव कर सका मैंने करने की कोशिश करी। तो अगर मैं बताऊं आपको, माइक्रो थीम अगर मेरे पास पहले से तैयार है, जैसे कास्ट की बात करें, मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ की, इंक्लूसिव ग्रोथ इतना मैं इसलिए बार बार ये टॉपिक मेरे दिमाग में था, इंक्लूसिव ग्रोथ, ई गवर्नेंस, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड आंसर्स ऑलरेडी बिल्ट हैं आपके पास। और अगर आप स्टैंडर्ड आंसर्स बिल्ट हैं तो आप 7 मिनट की तरह सोचते नहीं हो, आप बल्कि 6.5 मिनट में करोगे, 30 मिनट 30 सेकंड आप अगले वाले क्वेश्चन के लिए निकाल के भी ले जा सकते हो बढ़िया आंसर लिखने के बाद। तो माइक्रो थीम्स के बेस्ड कंटेंट अगर होता है आप, और कुछ जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स अगर उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी तैयार है ना आंसर उसका। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये माइक्रो थीम वाला प्रिपरेशन मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा है। मैंने बहुत सारे माइक्रो थीम्स तैयार करके रखे हुए थे जिनका मुझे पता है, जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस वाला है उसके क्वेश्चन आएंगे आएंगे। RPA का है, वो क्वेश्चन जनरली मतलब एक साल नहीं आया तो अगले साल आएगा, एक साल नहीं आया अगले साल आएगा। तो इनके तो तैयार करके रखो, आपको पता लग रहा है कि अगले साल आएगा। कंपैरिजन की बात आई, तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट का कंपैरिजन, अगर इंडिया का कंपैरिजन एक बार फ्रांस के साथ करा है तो अगली बार UK के साथ करा है, तो नेक्स्ट टाइम इट इज
ऑलमोस्ट गारंटेड कि वो यूएसए के साथ ही करेगा, यही तीन में लोग घूमता है, फ्रांस, यूएस, यूके। अभी तक का पूरा पैटर्न देख लो, यहीं पे घूम रहा है ये। तो आप माइक्रो थीम्स अगर आपने उसको एग्जीक्यूटिव का तैयार करके रखा हुआ है, यू आर गोइंग टू बी इन एन एडवांटेजेस पोजीशन। देन सेकंड पॉइंट इज पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊं। फोर्थ अटेम्प्ट, फोर्थ सॉरी फिफ्थ फिफ्थ अटेम्प्ट आई गॉट सिलेक्टेड। फिफ्थ अटेम्प्ट में स्मैश ज्वाइन किया मैंने, साथ के साथ मैं अपने दोस्त के साथ भी पीवाईक्यू मैं सर से डिस्कस करता था कि सर ये वाले टॉपिक्स में या फिर ये वाले सब्जेक्ट पे भी काम करना शुरू कर रहा हूँ। और दोस्त के साथ बैठ के मैं हर दिन सुबह 1 घंटे पीएसआई का आंसर, रात के 1 घंटे जीएस का आंसर, विदाउट फेल, ऑलमोस्ट विदाउट फेल। मतलब एंड के टाइम पे एग्जाम आते थे, मेरे दोस्त को मलेरिया हो गया था, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे हम एंड के टाइम पे। पर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हर दिन विदाउट फेल हमने लिखा है आंसर्स पीवाईक्यू के। लिखते थे आंसर, बढ़िया है खराब है वो अपनी जगह है, बस लिखते थे। और दूसरे वाले का सामने, एक दूसरे को टेलीग्राम पे आंसर शेयर कर दिया, मैंने उसका देख लिया, उसने मेरा देख लिया, अगर कुछ लगा अप्रिशिएट करने लायक तो अप्रिशिएट कर लिया, तो जो भी गेन करने का है वो गेन कर लिया। वो डायग्राम बहुत बढ़िया इंटीग्रेट करता था, मैंने उसका देखा था, उसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, वो मैं उसको बोल देता था, लेकिन उसने उसको डायग्राम बहुत बढ़िया इंटीग्रेट करना, डेटा बहुत बढ़िया इंटीग्रेट करता था वो। सो दैट इज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो। प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, हर दिन मैं पीवाईक्यू लिख रहा हूँ। टेस्ट भी मैंने सिग्निफिकेंट लिखे थे, लेकिन क्योंकि मैं पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस कर रहा था तो टेस्ट थोड़े कम हो गए थे। मतलब एग्जैक्टली वो 10 टेस्ट तो मैंने सारे टेस्ट में नहीं लिख पाया था, कुछ एंड के 2-3 मेरे छूट गए थे। पर प्रैक्टिस मैंने बहुत करी है, बहुत आंसर लिखे हैं। और इन जनरल टॉपर्स जो हो रहे हैं बहुत ज्यादा आंसर लिख रहे हैं, तब जाके उनके आंसर्स की क्वालिटी जो आपको बन के दिखती है वो वैसी दिखती है। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अगेन, दिस इज समथिंग विच आई हैड नेग्लेक्टेड टिल फोर्थ अटेम्प्ट। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस किस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, टॉपर्स के आंसर्स जो है, तो ये तो स्मैश मेंस के लिए अभी सर ने कि ये कंपाइल करा, मुझे लगा 25 पे हमारे पास ये वाला कंपाइलेशन नहीं आया था ना सर। 25 में भी था हमारा ये कंपाइलेशन। दिस इज द अपडेटेड वन कि जिसमें हमने 24 के टॉपर्स की भी इसमें आंसर्स है। अच्छा डाले हैं। आपके तो भी एक मैं दो तो, इसमें जीएस2 के है। तो अच्छा अच्छा। बेसिकली तो दीज आर माइक्रो थीम वाइज आंसर्स। अच्छा, हाँ तो मैंने तो सर मुझे सीधे सर ने अपना एक वो गूगल ड्राइव पे बना के रखा हुआ था, और सर ने वो सारे टॉपर्स के उसमें कंपाइल करके रखे हुए थे, और सर ने वही भेज दिया था मुझे कि टॉपर्स के और नाम बताते रहते कि अगर कुछ भी सर को रेफर करना हुआ कि उसके आंसर को देखो, उसके इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 या एनजीओ पे एक आंसर है, जैसा आई रिमेम्बर, श्रुति स्मृति मिश्रा। फोर्थ रैंक, स्मृति मिश्रा ना, द इनपुट आउटपुट डायग्राम। इनपुट आउटपुट डायग्राम एनजीओ वाला जो था, वो राइट। डायग्राम सर ने बोला था कि जाके एक बार उसको देखो, तो ऐसे सर रेफर करते थे कि उस वाली चीज को देखो। तो मैं फिर वो या तो सर ने मुझे वहां से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेज दिया, या तो फिर मैं जाके उस गूगल ड्राइव में ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा ठीक है हाँ, ये वाला आंसर है, इन्होंने ऐसा बढ़िया लिखा। टॉपरों के आंसर को मैंने बहुत पढ़ा, पांचवें अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ ये मैं। टॉपरों के आंसरों को पढ़ा मैंने, उनके क्वेश्चंस जो लिखे हैं उसको एक आध बार, बहुत ज्यादा तो नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी 4 मीन्स लिखा होता तो मेरे लिए थोड़ा वो रिडंडेंट जैसा एक्सरसाइज हो जाता। तो मैं क्या करता था कि जाके उनके आंसर्स को एनालाइज करने की कोशिश करता था। अब मैं जीएस में बहुत ज्यादा नहीं करा, मैंने पीएसआई के लिए बहुत ज्यादा करा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। पीएसआई में मेरे नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं कि इतने पीक पे हैं, तो वो क्यों है उसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। टॉपर के आंसर को एनालाइज करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। अब तो ये डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं आपके पास, तो एक जगह कंपाइल्ड है और माइक्रो थीम वाइज कंपाइल्ड है, तो आपने एक माइक्रो थीम पढ़ा और उसमें टॉपर के आंसर भी आप साथ में देख देख पाए, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एडवांटेजेस। आप टाइम स्पेंड करना है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में मिले, इस डॉक्यूमेंट के साथ आप टाइम स्पेंड करना। लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कि इस टॉपर का भी पढ़ लूंगा, अभी जाके न्यूज़पेपर भी बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा, फिर कोई इधर भी मैगजीन आ गई, मैगजीन भी पढ़ लूंगा, किसी टॉपर ने कुछ रेकमेंड किया वो भी कर लूंगा। इससे होता क्या है कि एक और चीज जो स्टैंडर्ड चीज है, जैसे टॉपर का आंसर स्टैंडर्ड है अक्रॉस द इयर्स, मतलब पिछले 10 सालों से, तो एटलीस्ट मतलब जिन टॉपर्स के मैंने कभी कुछ भी सुना हुआ है कि ये टॉपर्स के आंसर्स फॉलो रेफर कर रहे हैं। मुझे लगता है आज से 50 साल पहले भी लोग टॉपर के आंसर फॉलो करते ही होंगे, कहीं ना कहीं से लोग कोचिंग वालों के आंसर लिखवाए हैं, कोचिंग वालों के थ्रू वो निकालते होंगे आंसर, वो फॉलो किए जाते होंगे, तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसको आपको फॉलो करना है। तो इस चीज पे आप टाइम दो, टाइम कैसे देना है। जैसे पीएसआई का मैं बताता हूँ, पीएसआई का मैंने ज्यादा क्या करा हुआ है, क्वेश्चन पर लिया एक, और वहां पे लिख दिया मैंने कि माई स्ट्रक्चर करके लिखा, और मैंने अपने स्ट्रक्चर बनाया आंसर का। पहले बस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि माई स्ट्रक्चर करा, और मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि अच्छा एक पार्ट ये बनेगा इसका आंसर, इसके 3-4 पॉइंट लिखने मुझे, अगला पार्ट ये बनेगा क्वेश्चन का, इसके 3-4 पॉइंट लिखने, फिर अगला पार्ट ये बनेगा तीसरा पार्ट, इसके 3-4 पॉइंट लिखने, ये 10 मार्कर क्वेश्चन लिखे है। फिर मैंने टॉपर का आंसर देखना शुरू किया, और उसमें देखा क्या टॉपर ने ये 3 कंपोनेंट में डिवाइड किए हैं, अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, और उससे मैं क्या सीख सकता हूँ।
फिर अगर आपको और थोड़ा अंदर जाना है तो आप पॉइंटर्स लिखने शुरू करो, उसके पॉइंट्स लिखने शुरू करो कि 4 पॉइंट जो आपको लिखने थे। फिर आप देखना शुरू करो कि अच्छा क्या मैं एडिशन कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं सोच पाया था, और क्या मैंने बढ़िया लिखा। खुद को थोड़ा रिवॉर्ड करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, लोग परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, खुद को कैसे अप्रिशिएट करें, बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होते हैं लोग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में खुद को अप्रिशिएट करना भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा स्टैंडर्ड होता था, मैं खुद को अगर कुछ आंसर्स लिख के, तो अगर कुछ बढ़िया हुआ, कुछ अगर आंसर बढ़िया लिखे तो खुद को वहाँ पे अप्रिशिएट करता था मैं। और थोड़ा और ज्यादा कुछ अप्रिशिएट करने का मैंने, तो जाके मैं किताब खरीद के ले आता था, वही करोड़ बाग में घूम के, और खुद को थोड़ा रिवॉर्ड करता था मैं, जो मेरे लिए मुझे लगा कि बेनिफिशियल रहा था। तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच यू शुड बी गोइंग फॉर। आप इसको और इसके साथ टाइम स्पेंड करो, अगर आपके हाथ में ये आता है तो। नहीं भी आता है आपको टॉपर के अगर नोट्स कहीं से मिल रहे हैं, टॉपर के आंसर्स मिल रहे हैं, आप उनको फॉलो तो करो, या बहुत जगह ऑनलाइन रिसोर्सेज आप उसको यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पे एडेड एडवांटेज है, माइक्रो थीम बेस्ड है, तो यू वंस यू आर रीडिंग माइक्रो थीम, यू कैन जस्ट गो थ्रू द आंसर्स। टाइम स्पेंड जरूर करना है इसके साथ। Right. So on the same notes, so see, there are few toppers who have the inherent art of answer writing. So they don't just write the answers to dump the info, to reflect or to just show their knowledge, but they are the artist and they write the art as their own, write the answers as their own art. And that level of the answer writing, we call it the god level of the answer writing, where they are setting the highest of the standards. So in GS there are two toppers. One is Shruti Sharma ma'am and second is Shubham Kumar. Okay, so these two, for those two, I call them the god level answers. We have to reach that level of the answer writing. And as far as the PSR is concerned, so as far as the paper one is concerned, because specifically paper one part A, I would say that level has been achieved by Akash in the recent years, because I have read more than 700 or 800 overall toppers copies, including GS and PSR. The level of the depth that he has brought into paper 1A specifically, it is completely unmatched. Okay, so the normal structure where you write it into the story format वगैरह, he had just discarded everything. Specifically the content depth, the vocabulary of that particular subject, and the answers as per the demand of the questions. That level of the transformation that he has brought, so I would put him in the level of these two guys in GS and in optional this. Yeah. Okay, moving on. It's Then demand gap, and this was something again जो कि सर ने फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन वी हैड आवर इंटरेक्शन आफ्टर राइटिंग माय फर्स्ट आंसर टू द लास्ट ऑफ द डे, सर ने pointed out कि implicit explicit demand is something which you have to always bring out. आपको implicit भी address करना है और explicit भी address करना है। implicit will be having relatively shorter weightage, पर explicit का weightage ज्यादा होगा, but implicit has to be addressed। और इनिशियल डेज में आई वाज जस्ट नॉट एड्रेसिंग इम्प्लिसिट डिमांड। एक्सप्लिसिट तो चलो फिर भी एक बार को, क्योंकि यू हैव रिटन 3 or 4 मीन्स, तो यू आर इन अ डिसेंट पोजीशन, बट इम्प्लिसिट डिमांड इज समथिंग विच विल फेच यू दैट वन एक्स्ट्रा मार्क। और वो मेरा हमेशा ही मिसिंग रहता था, कभी कुछ छूट जाए, कभी कुछ छूट जाए, लेकिन इम्प्लिसिट वाला पार्ट छूटता ही था। सो दिस वाज समथिंग विच आई वर्क विद सर ऑन दिस इम्प्लिसिट एक्सपीरियंस। और ये वाला पार्ट तभी होता है जब आप 1-to-1 डिस्कशन करते हो, बिकॉज समवन हैज इवैल्यूएटेड योर पेपर, तो वो तो अपना नंबर वंबर दे के निकल जाएंगे। आपको उतना उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअली नंबर कटे तो कहाँ कटे। आपको 3-3.5 नंबर दे दिए, आपको ये तो नहीं पता है कि 1.5 नंबर किसके दिए, 1 नंबर किसके दिए। बट व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर मेंटोर, वहां आपको पता लगता है कि अच्छा ठीक है, इम्प्लिसिट डिमांड एड्रेस नहीं करा तो 3.5 ही तो मिलेंगे, और कितने मिलेंगे मुझे। तो दिस वाज समथिंग। डिमांड गैप में एक और चीज जो इशू आ रहा था वो था वे फॉरवर्ड का। मैंने वे फॉरवर्ड इज समथिंग विच इज इम्प्लिसिट डिमांड। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, और let's say that India is facing the problem of Naxalism, or India is facing problem of terrorism in Jammu and Kashmir। अब वो टेररिज्म है, तो क्वेश्चन है कि टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिंग आउट ऑल द चैलेंजेस एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसे क्वेश्चन लिखा है। नाउ जेनरिक बच्चा जो अभी थोड़े दोज हु आर नॉट एज वेल वर्स्ड इन दिस एग्जामिनेशन, वो हाउ विल दे राइट? वो लिख देंगे, बस चैलेंजेस बता देंगे एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। बट समवन हु हैज एक्सपीरियंस की नंबर नहीं आ रहे हैं, एंड हाउ ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट वर्क्स, he will always write a way forward, a solution,
कि ये परेशानियां तो हैं और इन वजह से परेशानी है, लेकिन इनका करें क्या? यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप जिले में बैठ के और बस परेशानियां नहीं गिना सकते। परेशानियां गिनाने के लिए मीडिया के लोग, एक्टिविस्ट लोग बैठे हैं। आपको ऑब्वियसली परेशानियां पता होनी चाहिए, लेकिन यू आर समवन हु इज गोइंग टू गिव द सोल्यूशन। तो प्रोग्रेस होगा कैसे? And for that progress and that you have that progressive mindset, you have to show to the examiner कि you can think holistically and you can give a solution to the problem that you are seeing. You have to bring out solution for the problems and not just sit there and see कि अरे भाई परेशानियां ये तो कमी नहीं हो पा रही है. You have to bring out that solution वाला aspect, and I believe that is where this way forward comes as a crucial component in our answer writing framework. Right. So basically, in simple terms, if they have asked the issues or challenges or any of the negative impacts or the consequences, so in simple words, if you are putting any negative points or if the question has the negative connotation, you in that case, always your answer should end with the way forward, irrespective whether they have asked it or not. Right. So apart from increasing your dimension coverage, it also brings in the completeness into your answers. You are not just highlighting the significance or not just highlighting the issues, but you are also providing them with the way forward or the solution. So that gives the sense of completeness, your problem solving approach, and as well as it also improves your dimension coverage. So we have made this rule कि wherever you are writing negative points, you have to give the way forward. पूछा है नहीं पूछा है doesn't matter. And also it, in a way, it also helps you to bring in the X factor into your answers. It provides you the opportunity to bring in global best practice, to bring in committee recommendations, or to bring in any state level best practice, etc. तो जो आपके ब्राउनी पॉइंट्स हैं, अब दो ही लिखो, you bring in that level or the X factor pointers into the way forward, and definitely, और वो होता भी आपके आंसर खत्म होने के पहले. ठीक है. सो इवेलुएटर ने अगर इनिशियल पार्ट अगर ज्यादा मन लगा के पढ़ा भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट एंड ही विल read properly because he has to give the marks. So before allocating you the marks, the last thing he will be reading is the way forward. So if there you are putting the X factors, automatically at a subconscious level he will have the positive view of your answer and वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. राइट. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर गैप. अब इसको कैसे ब्रिज करा गया है? आप जैसे sir was mentioning about this political science only and something in GS also, is that every micro theme, inclusive growth is one aspect, environment is another aspect. Every micro theme has its keywords, and you have to if there is a question on that micro theme, you will be in an advantageous position if you bring out its keywords. आप लिखने को आंसर वैसे भी लिख सकते हो, अपने शब्दों को आप यू कैन ऑलवेज राइट more number of words to explain the same thing, but then you will be taking away space where you could have written one other point, and next you will not be creating the same impact on the mind of examiner. जैसे कुछ कीवर्ड, इको चैम्बर इफेक्ट, अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हो आप अगर ये नहीं ला रहे हो और आप इसको लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिख रहे हो कि दैट यू स्टार्ट गेटिंग सेम फीडबैक एंड सेम फीड इन योर यूट्यूब इफ यू आर वाचिंग सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट, तो इतना लंबा लिखने की जगह सीधा लिखकर इको चैम्बर इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट देखो आप. इसने आपके सेंटेंस को छोटा कर दिया, आपके स्पेस को छोटा कर दिया जो लिखना था. और दूसरा, ये कितना बढ़िया विजिबल इम्पैक्ट डालता है कि यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. तो आपका एक काइंड ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज भी वो दिखाता है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कीवर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप उस पर्टिकुलर माइक्रो थीम के कीवर्ड सारे जरूर लाओ. यू विल बी इन एडवांटेजेस पोजिशन. श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, बट अगेन यू ब्रिंग आउट कीवर्ड्स, विल बी इन एडवांटेजेस पोजिशन. देन स्पेस मैनेजमेंट क्या है? यू स्टार्ट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डिमांड. तो explicit, let's say there are 10 marker question. Generally, they will have two parts to the question, and so आप उसको, if there are two parts, you have to ensure कि दोनों को equal pages मिल रहे हैं. The first page is going to the first part, second page is going to the second part. और उसमें अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है तो सेकंड पार्ट को थोड़ा छोटा करके एंड में यू हैव रिटन द वे फॉरवर्ड. यहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स ना. आप सेकंड पेज पे देखो, यहाँ पे यंग फर्म्स एक मैंने कंटेंट यूज किया है. ये कीवर्ड एक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का वर्ड है.
यंग फर्म्स, ड्वार्फ फर्म्स, ये इकोनॉमिक सर्वे का वर्ड में लेके मैंने यहाँ पे यूज किया। ऑरेंज इकोनॉमी एक वर्ड चल रहा था। सेकंड पॉइंट आई एम टॉकिंग, सेकंड थर्ड पॉइंट आई एम टॉकिंग। फोर्थ पॉइंट में मैंने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लिख दिए हैं। तो अननेसेसरी, आप सेकंड पॉइंट ऊपर वाले सेकंड पेज पे जाके देखो, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, देख रहे हो कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। जॉबलेस ग्रोथ एक अनदर देयर इज कीवर्ड। तो आप ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप देख रहे हो, इसकी वजह से मुझे चीजें लिखनी कम पड़ रही हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें कन्वे कर पा रहा हूँ। और जो इकोनॉमिक्स, क्योंकि द पर्सन हु चेकिंग द पेपर, ये जनरली गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। तो ये कीवर्ड्स उनको अच्छे लगेंगे पहला, और उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस कीवर्ड का मतलब क्या है। कोई भी मतलब रैंडम पर्सन इज नॉट चेकिंग इट। तुम्हारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ही वो दिल बी चेकिंग। तो इट इज बेनिफिशियल। सेम हियर, स्पेस मैनेजमेंट मुझे लगता है रिलेटिवली बेटर रहा है। आई हैव बीन एबल टू गिव स्पेसेस। सब्सटेंशिएशन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर जगह करने की कोशिश करी, एग्जांपल के फॉर्म में, या फिर अगर कुछ डायग्राम मिला तो डायग्राम मैंने ऐड करने की कोशिश करी है। एक फ्लो चार्ट जैसा कुछ बनाया है मैंने साइड में। You are able to convey significantly higher information, significantly more information than what you would have done uh, अगर आपने इसको वर्ड्स में लिखा होता, क्योंकि फिर आपको बाकी पॉइंट्स में जाके काटने पड़ते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू ऐड। Right. So I hope all of you have understood the nuances or the micro level at which he had worked, or he had tried to analyze his answers, and accordingly the difference that he has brought into his answers. Ultimately, again, it's a game of content कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है. You need to have the factual data into your answers, but along with that hard work, it is the understanding of these nuances. ठीक है, जो अभी आकाश ने आपके साथ सारी शेयर की with respect to the gaps as well as how to bridge those gaps. So understanding of those is the first fundamental of your main success. Then after understanding, it is just the building of the content. So the, like he pointed out, the X factor notes, the model answers, and that is going to build the content, and the top of it, it is the practice. So within the practice, apart from the tests, it is the PYQs on which you have to anchor your preparation. So on these three levels, you have to structure your preparation accordingly. You have to prepare your plan, and accordingly you have to prepare in order to clear the mains, and that too with the good buffer marks, in order to make your preparation interview proof. And I'm sure in last year his mains score in the GS was 400 to be exact, and this year it is going to be 430 plus minimum. Okay, so when the result comes, and as far as the PSIR is concerned, he has already reached at the top level. If we can increase in paper 2, so 150 plus in paper 1, 150 plus in the paper 2, so around 310, 320, then probably next year we'll see Akash in the top 10, right? So wish him all the Let's best, hope, sir. Let's hope. and Let's hope for the best. yes.